کراچی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے 14 سالہ بچی جس کا نام دعا زہرا ہے۔ کیا 14 سال کی عمر میں قانون اجازت دیتا ہے نکاح کی؟ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ایس ایم کامران موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون ہے اس کو انٹائی سروے کیا جاتا ہے، ورگلایا جاتا ہے، تو وہ 496 کا قانون وہ حرکت میں آتا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے سائیکلوجیکل رویے ہیں، ہمارے پیرنٹس کے وہ ڈسٹینسز ہیں جو ان کو اپنی اولاد کے ساتھ فرینڈشپ میں آنے کی بجائے وہ ان کو ڈسٹینس پہ لے جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ 14 سال کی ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ 16 ایئر سے کم ہے، تو یہ چائلڈ میرج تصور ہوگی قابل سزا جو اس کے اوپر 1 سال سزا اور جرمانہ وغیرہ قانون نے اس پہ رکھا ہے۔ اگر انہوں نے شادی کر لی ہے، اگر ان کی ایج پبرٹی کی ہے اور اگر ان کی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ میں مطابق دی گئی ایج سے میچ نہیں کر رہی، تو یہ شادی قوانین کے مطابق ہے۔ کورٹ نے جو آرڈرز کیے ہیں وہ کورٹ کے آرڈرز یہی ہیں کہ لڑکا لڑکی اکٹھے ایک ساتھ رہ سکتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول بز۔ ناظرین، کراچی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے 14 سالہ بچی جس کا نام دعا زہرا ہے، وہ گھر سے باہر جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ کچھ دن بعد خبر ملتی ہے کہ وہ بچی لاہور کے علاقے میں موجود ہے اور اس بچی نے نکاح کر لیا ہے۔ کیا 14 سال کی عمر میں قانون اجازت دیتا ہے نکاح کی؟ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ایس ایم کامران موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ 14 سال کی عمر میں نکاح کیا جا سکتا ہے قانونی طور پہ؟ اس میں سول اور کرمنل قوانین الگ سے کام کر رہے ہیں۔ جو ایک سب سے پہلے چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 ہے، اس کا اسپیسیفک جو سیکشن ہے 2 جس میں ڈیفینیشن چائلڈ کی دی گئی ہے، اس چائلڈ کی ڈیفینیشن میں کہا گیا اے چائلڈ از کنسیڈرڈ اف ہر اور ہز، دونوں کو کنسیڈر کیا گیا کہ لڑکا ہے تو شادی کرنے کے لیے اس کو چائلڈ کی ڈیفینیشن میں فال کرنے کے لیے اس کی ایج 18 سے نیچے ہو، اور اگر لڑکی کو چائلڈ کہا جا رہا ہے تو اس کی ایج 16 سے نیچے ہو۔ مینس دیر بائی کہ ایک لڑکی کو پاکستان میں شادی کرنے کے لیے عرضی قوانین کے مطابق 16 ایئرس کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی شادی کی جو ایج عرضی قوانین کے مطابق طے کی گئی وہ ہے 16 ایئرس ایز پر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ، کہ اس سے نیچے ہوگی تو وہ چائلڈ میرج سمجھا جائے گا اینڈ اٹ از پروہیبٹڈ انڈر دی لا۔ یہ یعنی اگر وہ 14 سال کی ہے، اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ 16 ایئر سے کم ہے، تو یہ چائلڈ میرج تصور ہوگی قابل سزا جو ہے اس کے اوپر 1 سال سزا اور جرمانہ وغیرہ قانون نے اس پہ رکھا ہے۔ گرپ بھی رکھی ہے کرنے والوں کو، کرانے والوں کو۔ ہاں، البتہ یہاں پر کچھ شرعی قوانین وہ الگ سے کام کریں اور ان کے اوپر کنفیوز رہا ہے قوانین، اور جہاں پر ان کا ٹکراؤ آ جاتا ہے وہاں پر فیڈرل شریعت کورٹ کام کرتی ہے، اپنی ججمنٹ ڈیلیور کرتی ہے۔ بیسیکلی جہاں پر پوائنٹ آف لا میں اور پوائنٹ آف شریعہ میں جو ڈفرنس آ جائے گا، اس ڈفرنس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہے فیڈرل شریعت کورٹ۔ وہ مسٹر اس کے چیف جسٹس جو ہیں، ابھی ریسنٹلی ملٹیپل لوگ اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں۔ ابھی ایک اس کی جو سیکشن 2 میں ڈیفینیشن دی گئی ہے، اس ڈیفینیشن کو چیلنج کیا گیا، ایک پیٹیشن فائل کی گئی اس فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور اس کو کہا گیا کیونکہ شریعت میں تو مثالیں اور ملتی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ جو ہیں، ان کی نکاح کی عمر 6 سال تھی اور جب ان کی رخصتی ہوئی وہ 9 سال تھی، یا کچھ روایتیں وٹ ایور جو بھی اس کو کوٹ کر رہی، لیکن 6 سال 9 سال یہ طے۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ شرع میں تو بلوغت تب بھی تھی تو شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، اور اس لیے بلوغت کی عمر کا تو تعین تبھی ہوگا جب ایک فیمیل کمپیٹنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ میٹریمونیل اپنے جو ہے فرائض وہ انجام دے سکے۔ اور شریعہ لاز کے مطابق تو ان کو ڈرائیو کر کے پاکستان کے سوشل کسٹمز، ہماری سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے جو قوانین کنکلوسیو جو اپلیکیبل قوانین رکھ دیے گئے، وہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کا قانون اسمبلی نے پاس کر دیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی شادی کو قانونی یا غیر قانونی قرار دینے کے لیے ایک فیکٹر بچتا ہے، وہ فیکٹر ہے اس کی ایج ڈٹرمنیشن۔ اب اس کی ایج ڈٹرمنیشن یا تو اس کے بے فارم سے ہوگی، اور بے فارم ہماری سوسائٹی میں سم ٹائمز لے دے کے مینیج کر کے بھی بنوا لیا جاتا ہے۔
साल आगे साल पीछे 2 साल आगे पीछे, और ख़ास तौर पे जो लेट इंदराज होते हैं उनमें तो प्रोबेबिलिटीज़ बहुत है। किसी का लेट इंदराज करा के उसके 2 साल आगे करवा दें, तो उसका मतलब ये नहीं कि नेचुरली जो एक बायोलॉजिकल पर्सन है, वो बायोलॉजिकल पर्सन उसकी एज इतनी नहीं है, उसकी एज तो पुबर्टी पे जा चुकी होती है। पुबर्टी अटेन करने के लिए उसकी जो एज वो कंप्लीट हो गई, शादी के लिए कॉम्पिटेंट हो गई। अब रह गई बात सिर्फ कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी आप देख लें, जो एक पूरा शोर क्रिएट हुआ और सोशल मीडिया ने माशाल्लाह बड़ी इसको हाइप दी, और एट फर्स्ट ग्लांस लगा कि ये बड़ी विक्टिमाइजेशन का केस है और स्टेट इज़ नॉट टेकिंग सम एक्शन, कुछ इस तरह के इम्प्रेशन सामने है। लेकिन हमेशा आपने देखा है पुलिस वाले अपनी जो कारकर्दगी आवाम से आपको अक्सर नाला नज़र आएगी, लेकिन हमारे इस तरह के केसेस में पुलिस डिले, तवक्कुफ़ या इंदराज मुकदमा में डिले के बाद उससे पहले प्रोब करते हैं, एक्चुअल रीजंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये दुआ ज़ारा के वालिदैन का कहना था कि हमारी बच्ची को प्रेशराइज़ किया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर जी हमारे जो क्रिमिनल लॉ है उसमें प्रॉपर एक सेक्शन दिया गया 496A पाकिस्तान ऑफ पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान पीनल ताज़ीरात पाकिस्तान में, वो इट स्पीक्स आउट द फैक्ट कि एंटाइसिंग अवे एनी वुमन, अगर कोई खातून है उसको एंटाइस अवे किया जाता है, वर्गलाया जाता है विद एन इंटेंट फॉर क्रिमिनल इंटेंशंस के लिए या उसके साथ सेक्स करने के लिए या वट एवर द रीज़न, तो वो 496 का कानून वो हरकत में आता है। लाइक इसी तरह की FIRs रूटीन का हिस्सा है। जब एक पेरेंट्स आकर बज़ाहिर पुलिस को ये रिपोर्ट करते हैं कि हमारी बेटी की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स वो अंडर बलूगत थी और ज़ेरे बलूगत होने की वजह से उसकी सोचने समझने और फैसला करने की स्किल्स ठीक नहीं थी, जबकि उनका जो ओपोनेंट है और जबकि जो उनका मोरद इल्ज़ाम है वो चालाक और सियाना शख्स था, उसने वर्गला लिया। सो सेक्शन वहाँ पर बज़ाहिर हिट हो गया, कानून अमल में आ गया, और फिर FIR चाक होने के बाद उसकी तफ्तीश अमल में लाई जाती है। हाँ, ये अलग से बात है, जब तफ्तीश होती है तफ्तीश में मुमकिन तौर पर 95% पर्चों में इस तरह के FIRs में एक ब्लैक एंड वाइट निकाहनामा पेश किया जाता है और बताया जाता है इट्स नॉट अ केस ऑफ एंटाइसिंग अवे, इट्स नॉट अ केस ऑफ एब्डक्शन, इट्स नॉट अ केस ऑफ ज़ना एट्सेट्रा, बल्कि एक कॉन्सेंट से शादी हुई थी, वो निकाह हुआ, निकाह पेश कर दिया जाता है। उस निकाह के मुमकिन डिफेंस के ज़ेर नज़र उसमें लड़की का मैजिस्ट्रियल कोर्ट में बयान भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें लड़की कैटेगोरिकली अंडर ओथ अफर्म करती है कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी की है, मुझे किसी ने वर्गलाया नहीं है, मैं घर से कोई चीज़ लेकर नहीं आई। ये वो लीगल कंटेंट्स हैं जो कानून सुनना चाहता है कि लड़की को 164 की स्टेटमेंट देने से पहले उस कानून के प्रॉज एंड कॉन्स और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया जाता है। आप ये कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रही हो या आप ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हो, आप अपनी आज़ाद मर्ज़ी से आ गई हो, आपको कोर्ट में किसी ने प्रेशराइज तो नहीं किया। अच्छा, दुआ ज़ारा के वालिदैन कह रहे हैं कि हम लड़के के ऊपर केस करेंगे। अगर दुआ ज़ारा ये बयान दे देती हैं कि मैंने अपनी रज़ाबंदी से की है और मैंने अपनी खुशी से ये निकाह की है, तो उस लड़के के ऊपर कोई केस हो सकता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुमकिन तौर पर 496 इज़ द ओनली लॉ जो रेमेडी लाई करती है दुआ ज़ाहरा के पेरेंट्स को। यही प्ली लेंगे, सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, उसको वर्गला के लेके, इसके अलावा और कोई कानून नहीं ऐसा। इसके पीछे हमारे साइकोलॉजिकल रवैये हैं, हमारे पेरेंट्स के वो डिस्टेंसेस हैं जो उनको अपनी औलाद के साथ फ्रेंडशिप में आने की बजाय वो उनको डिस्टेंस पे ले जाते हैं। लाइक बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर हम एक तो सोशल मीडिया का आज़ादाना इस्तेमाल है, वहाँ पर एक आपकी इंस्टिगेशन हर वक्त यंगस्टर्स के लिए मौजूद है। टिकटॉक को ले लें, टिकटॉक पे अक्सर टिकटॉक देखे जाते हैं कि लड़का लड़की दोनों मिलकर मतलब वो एक टिकटॉक बना रहे हैं, एक कपल शो कर रहे हैं, हालांकि उनकी एजेस वो मैरिज एजेस शो नहीं करती। ये लड़की का लड़के के साथ रिलेशनशिप था, मशकूक था, तो बजाय पर्चा दर्ज करने के
कोर्ट में सबसे पहले पुलिस वाले जाके उसी लड़के को अप्रोच करके उसे प्रोब में शामिल करके, जिसे कहते हैं तस्दीक वक़ुआ होना, 160 की उसको कार्रवाई करके 160 CRPC के उसकी तलबी लगाते, उससे पूछते कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ ये कह रहे हैं, तुमने उसको वर्गलाया या उसको ले गए हो, वो अंडर एज है, वो पुबर्टी तक नहीं पहुंची, तो क्या कहते हो? अगर वो वहीं पर उसको दिखा देते तो FIR की नौबत ही ना आती। अब कोर्ट में या पुलिस में जाकर ये चीज़ें रिपोर्ट ऐसे डायरेक्टली ट्रुथफुली नहीं की जाती, बताया जाता है अगवा होगी, और अगवा के बाद बड़ा एक हीनियस ऑफेंस का टैग लग जाता है जिसमें उस लड़के का जान छुड़ाना भी समटाइम्स मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लाइक कंपाउंडेबल ऑफेंस तो नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि दोनों साइड से ये बनता है। अगर उन्होंने शादी कर ली है, अगर उनकी एज पुबर्टी की है और अगर उनकी चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट में मुताबिक दी गई एज से मैच नहीं कर रही, तो ये शादी कानून के मुताबिक है, जैसा कि पुलिस ने अपना स्टांस मेंटेन किया कोर्ट में आके, और कोर्ट ने उसको लेजिटिमेसी और कानून के तहत बता दिया कि शी इज़ मेजर सोई जूरिस, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती थी, सो उसको कर दिया। पुलिस ने तो कहा इसको भेजें, आप इसको दारुल अमान भेजें, वर्ग लाया गया, शादी लेजिटिमेट नहीं है, लड़के से अलग कर दें, लेकिन आफ्टर ऑल शी इज़ लिविंग, वो उसके साथ रह गई, क्योंकि अपेरेंटली कोर्ट ने जो ऑर्डर्स किए हैं वो कोर्ट के ऑर्डर्स यही हैं कि लड़का लड़की इकट्ठे एक साथ रेस्ट। उन्होंने कहा पेश किया, उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स पेश किए, उल्टा उसने हैरेसमेंट का केस भी किया था अपने ही पेरेंट्स के खिलाफ कि थाना फलां वाले मिलके पेरेंट्स के बिहाफ पर मुझे और मेरे न्यू कपल को, हम स्पाउसेस को तंग कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, इट्स इलीगल। इसी हरासमेंट के केस पे वो हाई कोर्ट में भी पेश हुई। तो मैं समझता हूँ उनकी शादी लेजिटिमेट है, और लड़की की बज़ाहिर देखने में किसी की जजमेंट में जो भी एज हो वो डॉक्यूमेंट डिटरमिन करेगा। वो समटाइम्स मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जब इस तरह के केसेस होते हैं, ट्रायल चलता है, उस ट्रायल में एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा ट्रायल चल रहा होता है कि वेदर उसकी एज प्यूबर्टी वाली है या नहीं है। इसके ऊपर समटाइम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर रिलायंस नहीं की जा सकती, क्योंकि शनाख्ती कार्ड तो बना नहीं होता, एक बे फॉर्म होता है, और बे फॉर्म में मैनूवरिंग के देयर आर सो मेनी चांसेस। इसलिए समटाइम्स DNA और एज टेस्ट उसके ऊपर जो है बोर्ड भी बिठाया जाता है मेडिकल, उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ एज की जाती है। उसके बाद अगर मेडिकल ओपिनियन में साबित हो जाए कि इसकी एज इतनी है या वट एवर द एज, बलूगत से ऊपर है या अंदर है, तो उसके मुताबिक उस केस का फैसला मिटा दिया जाता है उस केस को, और उस केस में हो जाता है कि यानी ये बालिग थी, इसने शादी लेजिटिमेट की, इसकी कोई सजा नहीं। अच्छा, जो मतलब कि कम उम्र बच्चों का निकाह करवा देते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई, कानूनी क्या कार्रवाई हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी निकाह ख्वान जो है, इनको भी पता होता है, लाइक जिसका निकाह करा रहे हैं उससे पूरे सबूत चीज़ें लेते हैं, लेकिन वही बात है कि इनकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेजिटिमेसी है, इनकी लाइसेंस होता है, निकाह रजिस्ट्रार और ऑलवेज रजिस्टर्ड विद द यूनियन, वो टाउन हॉल के साथ उनकी अथराइजेशन है। हर यूनियन काउंसिल को निकाह रजिस्ट्रार मिले होते हैं। निकाह रजिस्ट्रार के आगे भी एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। सेंटरली हर यूनियन काउंसिल से एक निकाह रजिस्ट्रार का ठप्पा लगेगा, वो ठप्पा लगा के आगे रजिस्ट्रेशन करवा के देने का पाबंद होगा, उसका एक लाइसेंस है। अगर वो या उसका नुमाइंदा किसी जगह पर गैर कानूनी इस तरह की शादी करवा देते हैं तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, उनके अगेंस्ट जो फाइन्स हैं, उनकी जो पनिशमेंट है, उनके अपने लॉज के अंदर, वो रजिस्ट्रेशन के लॉज के अंदर, तो उसके मुताबिक उनको डील किया जाता है। उनके केस को सजा बिल्कुल होती है, और समटाइम्स इन निकाह रजिस्ट्रार्स के ऊपर पर्चे भी होते हैं। इन्होंने निकाह पे निकाह भी कभी पढ़ा दिया होता है, फिर उसमें एक्यूज़ भी बन जाते हैं। बहरहाल उसको कैसे मैनेजमेंट स्मार्टली इसको मैनेज करते हैं, लेकिन जो भी जितना भी स्मार्ट एक्यूज्ड हो वो हमेशा अपने ट्रेसेस छोड़ जाता है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।